اخبار کی کتاب 23واں باب، The book of Leviticus chapter 23 verse 15 to 21، 15ویں آیت سے 21ویں آیت کے آخر تک، اور پھر دو حوالہ جات ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سے دیکھیں گے۔ انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ مجھے کلام سنانے دیا جائے۔ اخبار کی کتاب 23واں باب 15ویں آیت سے، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پورا لاؤ گے، گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائے، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصے کے وزن کے میدے کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا، وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہرے۔ اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم 7 یک سالہ بے عیب برے اور 1 بچڑا اور 2 مینڈے لانا، تاکہ وہ اپنی اپنی نذر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں، اور خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشی قربانی ٹھہریں۔ اور تم خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا اور سلامتی کے ذبیحہ کے لیے 2 یک سالہ نر برے چڑھانا، اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے۔ وہ خداوند کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہرے، اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو۔ تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ دوسرا حوالہ رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 5 آیات کی تلاوت ہم کریں گے اور سنیں گے، اور یوں لکھا ہے: اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ، اور یہ پہلا رسالہ مقدس لوکا کے مطابق انجیلی بیان، ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ صرف زندہ ہونے کی بات نہیں، زندہ ہونے والا زندہ ظاہر اپنے آپ کو کرتا رہا، اور وہ آج شام آپ پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا ہے۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا۔ What a style! حکم دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ ان سے مل کر
یروشلیم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تیسری تلاوت، اور یہ ہمارا کی ریفرنس ہے، رسولوں کے اعمال کی کتاب 2 باب، اس کی پہلی 5 آیات۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ ہیلیلویا! کتنے بھرے؟ اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خدا ان کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ عید پینتیکوست کا شمار ان 3 یہودی عیدین یا فیسٹیولز میں ہوتا ہے جنہیں منانے کا حکم یہوہ خدا نے موسیٰ تورات میں دیا تھا۔ خروج کی کتاب اس کا 23واں باب، اس کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تو سال میں 3 بار میرے لیے عید منانا، اور ان 3 عیدین میں یا ان 3 فیسٹیولز میں، عید فصح، فیسٹ آف پاسوور، عید پینتیکوست، فیسٹ آف پینٹیکوسٹ، اور تیسری عید خیام، فیسٹ آف ٹیبرنیکل۔ یہ فیسٹیولز یا عیدین یہودی تاریخ کے خاص واقعات کی یادگاری کے لیے منائی جاتی تھی، جن سے یہوہ خدا کی لامحدود قدرت، بے انت اس کی طاقت اور اس کا رحم منعکس ہوتا تھا۔ عہد عتیق میں اس عید کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ جب ہم خروج کی کتاب اس کا 34واں باب، اس کی 22ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر اس عید کو ہفتوں کی عید کہہ کر پکارا گیا ہے، کیونکہ 7 ہفتے مکمل اس عید کا موسم رہتا تھا، جو 50ویں دن اپنے عروج کو پہنچتا تھا۔ پھر عہد عتیق میں اس عید کو خروج کی کتاب 23واں باب 16ویں آیت میں فصل کاٹنے کی عید یا فیسٹ آف ہارویسٹ بھی کہا گیا ہے، کیونکہ لوگ فصل کٹ جاتی تو شکر گزاری کے طور پر خدا کے حضور حاضر ہوتے۔ پھر اس عید کو فیسٹ آف دی فرسٹ فروٹس یا پہلے پھلوں کی عید بھی کہا جاتا تھا، اور یہ ابھی اپنے احبار کی کتاب کے 23ویں باب کی 16ویں اور 17ویں آیات کے اندر سنا ہے، کیونکہ اس کٹی ہوئی گیہوں کی نئی فصل کے میدہ سے 2 گردے یا ویو لوبز بنا کر سب سے پہلے خداوند کے مذبح پر چڑھائے جاتے، جو اس حقیقت کی علامت اور اقرار تھے کہ یہوہ نے
ہماری پرورش کے لیے کثرت سے برکت بخشی ہے اور اسی کے سبب سے ہماری خوشحالی ہے۔ اس اقرار سے دوسری قوموں میں یہ گواہی دینا بھی مراد تھا کہ بنی اسرائیل خدا کی برگزیدہ اور الگ کی ہوئی چنیدہ قوم ہے۔ لفظ پینٹیکوسٹ، ہمارا انگریزی زبان کا لفظ پینٹیکوسٹ، یہ یونانی زبان کے لفظ پینٹیکوسٹے سے ماخوذ یا مشتق ہے، جس کے بنیادی معنی ہے 50th یا 50واں، کیونکہ پرانے عہد نامے میں یہودی اس عید کو عید فصح کے 50ویں دن مناتے تھے۔ اگرچہ پرانے عہد نامے میں عبرانی بائبل میں لفظ پینٹیکوسٹ مستعمل نہیں ہے، بلکہ مختلف اصطلاحات یا ٹرمنالوجیز درج ہیں، جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، ہفتوں کی عید، فصل کاٹنے کی عید یا پہلے پھلوں کی عید۔ لیکن سیپٹوجینٹ ٹرانسلیشن، جس کو ہفتادی ترجمہ یا سطروں کا ترجمہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ترجمہ ہے جو صدر یہودی اسکالرز نے پرانے عہد نامے کا ترجمہ یونانی زبان کے اندر کیا تھا، اس ترجمے میں 50ویں دن کے لیے پہلی دفعہ یہ یونانی زبان کا لفظ پینٹیکوسٹے استعمال ہوا ہے، جس سے ہم پینٹیکوسٹ لفظ لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ بعد کے زمانے میں ڈیکالوگ 10 احکامات یا موسوی شریعت کے دیے جانے کی یادگار بھی اس عید کو ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہودی ربیوں نے یہ تعلیم دی کہ شریعت مصر سے خروج کے 50ویں دن دی گئی، لیکن اس ٹریڈیشن روایت کے بارے میں نہ تو پرانے عہد نامے میں ہمیں کوئی حوالہ ملتا ہے، نہ یہودی مورخین ہسٹورینز جن میں فیلو اور یوسیفس ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ عید پینٹیکوسٹ جس کی بابت ہم غور کر رہے تھے، یہ جیوش عید یا یہودی عید پینٹیکوسٹ ہے۔ مسیحی پینٹیکوسٹ کا عکس ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتا ہے، لیکن اس عید کا اصل جو ہے وہ نئے عہد نامے کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ یاد رہے، آج ہم جوش فیسٹ آف پینٹیکوسٹ سیلیبریٹ نہیں کر رہے، بلکہ ہم مسیحی پینٹیکوسٹ سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج رات یہاں پر اکٹھے ہیں، اور رسولوں کے اعمال کی کتاب کا مصنف 2 باب کے اندر ہمیں عید پینٹیکوسٹ کے ڈائنامک ریزلٹس، ایفیکٹس کی بابت بھی بتاتا ہے۔ اور آج جب ہم یہ عید منا رہے ہیں تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم عہد عتیق کی عید منانے نہیں جا رہے، وہ تو ایک عکس تھا، ایک اشارہ تھا جس کی تکمیل پینٹیکوسٹ کے دن ہو گئی روح القدس کے نزول کے وسیلے سے، اور آج رات ہم روح القدس کی عید منانے کے لیے اس جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ مسیحی الہیات میں مسیحی پینٹیکوسٹ یہ روح القدس کے سپر نیچرل یا مافوق الفطرت طور پر نزول کا دن ہے، یہ کلیسیا کی پیدائش کا دن ہے۔ روح القدس کے نزول کے حوالے سے پرانے عہد نامے کے صحائف اور انبیاء کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کا دن ہے، اور یہودی عید پینٹیکوسٹ میں پہلے پھل خدا کے حضور دیے
کیے جاتے تھے، اور مسیحی پینتیکوست کے دن بھی روحانی پہلے پھل 3000 لوگ جنہوں نے مسیح کو اپنا آپ دے دیا تھا، اپنے آپ کو مسیح کے ہینڈ اوور کر دیا تھا، ان کو پہلی نظر یا پہلے پھلوں کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہودی پینتیکوست کے موقع پر 2 گردے یا 2 چھوٹی روٹیاں لانے کا حکم تھا۔ یہ لفظ گردے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چھوٹی ٹکیاں، اور پھر اس کا مطلب ہے ایسی روٹی جو خمیر کے ساتھ پکائی گئی۔ جب ہم پرانے عہد نامے میں خروج کی کتاب، احبار کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، خدا نے سختی سے بنی اسرائیل کو خمیر سے منع کیا تھا، اور یہاں تک حکم ملتا ہے خمیر تمہارے گھروں میں موجود نہ ہو، اس کو نکال پھینکو، کیونکہ خمیر گناہ کی علامت ہے اور یہوہ گناہ کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن عید پینتیکوست کے دن پر خاص حکم الہی یہ دیا گیا کہ تم خمیر کے ساتھ 2 گردے لے کر میرے حضور میں آنا، اور یہ خمیر کے ساتھ 2 گردے یہ اشارہ دیتے تھے، یہ رہنمائی کرتے تھے کہ نئے عہد کی کلیسیا وہ کس طرح کی ہوگی۔ ان کو گناہ سے نکالا جائے گا، آزاد کیا جائے گا، ان کو نجات دے دی جائے گی۔ کوئی کامل مخلوق آسمان سے نہیں اترے گی خدا کی پرستش کے لیے، بلکہ وہی لوگ جو گناہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گناہ میں مر رہے ہیں، خمیر ان کے اندر موجود ہے، لیکن روح القدس کی آگ کے وسیلے وہ پاک کر دیے جائیں۔ یہ خمیر ان کے کردار کو بیان کرتا ہے جنہوں نے پینتیکوست کا تجربہ کیا۔ بہت دفعہ ہم خود سے فیصلہ سازی کرتے ہیں، خود آرڈیننسز بنا لیتے ہیں، مجھے پاک روح نہیں مل سکتا، اگلے سال میں پاک ہو جاؤں گا، اور اگلے سال کو میں ہو مصیبت کو پڑے آؤں گی، اور ہم یہ فیصلے کر لیتے ہیں کہ شاید خدا پاک اور ان لوگوں پر جو کردار کے حوالے سے کامل ہے پاک روح نازل کرتا ہے۔ ہرگز نہیں، کیلوری سے بہنے والا سوتا دنیا کے ہر ایک گنہگار کو دھو کے پاک کر کے اس لائق بنا دیتا ہے کہ اس پر پاک روح کی آگ کا نزول ہو، اس کی تقدیس ہو، وہ مقدس کیا جائے، وہ پاک کر دیا جائے۔ پینٹیکوسٹ ایکسپیرینس یہ حقیقی اور آسمانی تجربہ ہے۔ اس کی بابت ہم کوئی حرزہ سرائی نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں فرض نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ رسولوں کے اعمال کی کتاب کا 2 باب یہ بتاتا ہے کہ اس تجربے کا تعلق کسی ڈینومینیشن کے ساتھ نہیں ہے، کسی زبان کے ساتھ نہیں ہے، کسی کی قومیت کے ساتھ نہیں ہے، کسی کی نیشنلٹی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ تجربہ ایک یونیک ڈائنامک ایکسپیرینس ہے جس کی کائنات کے اندر کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب بتاتی ہے کہ وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس کا نزول کوئی حادثہ نہیں تھا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا کہ وہ گھر سے اس بات کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے اور انہیں پاک روح دے دیا گیا تھا۔ ان کا جمع ہونا ایک جگہ پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر، دلی طور پر اس تجربے کے لیے تیار تھے، بھوک اور پیاس کے ساتھ وہ وہاں پر موجود تھے۔ مقدس لوکا نبی اپنے انجیلی بیان
کہ 24वें बाब की 49वीं आयत में लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को इस तजर्बे के बारे तालीम दी और मसीह ने कहा, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। बड़ी खूबसूरत बात, बेटा बाप के वादों का जामिन है। जिसका मेरे बाप ने वादा किया है उसको मैं तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आग में बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले इस शहर में ठहरे रहो। उनके पास एक्सपीरियंस था, उनके पास बदबू निकालने और शैतान और उसकी कुव्वतों पर गालिब आने का तजर्बा मौजूद था। 3.5 साल मसीह खुदावंद की जुबान मुबारक से तालीमात सुनते रहे, मुर्दे जिंदा होते देखे, पानी को मैं में बदलते देखा, लेकिन ये सब कुछ काफी नहीं था। मसीह खुदावंद ने आसमान पर जाने से पहले शागिर्दों को बता दिया कि अगर दुनिया को हिलाना चाहते हो, मुतासर करना चाहते हो, रूहों को जहन्नुम से निकालकर आसमान की बादशाही के लिए जीतना चाहते हो, तो इसके लिए डिग्रियां जरूरी नहीं है, इसके लिए ऑर्डिनेशन जरूरी नहीं है, इसके लिए रिचुअल जरूरी नहीं है, इसके लिए जो तजर्बा चाहिए वो कुव्वत के लिबास का तजर्बा है, जिससे तुम दुनिया को हिला देने की कुदरत पा सकते हैं। फिर सुनो के अमाल की किताब 1 बाब 4 और 5वीं आयत में मसीह ने उनसे कहा, मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे, मसीह ने ये नहीं कहा जिसका जिक्र तुम अहदे अतीक के अंदर पढ़ चुके हो, मसीह ने कहा जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। और जब हम इंजीली बयानात का मुताला करते हैं, मसीह खुदावंद ने अपनी जमीनी जिंदगी में रूहुल कुद्स की बाबत बड़ी तालीम दी। खुसूसन यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान उसका 4वां 15वां 16वां 3 अबवाब जिनको मसीही दुनिया में सरमन ऑन दी अपर रूम या बाला खाना का वास कहा जाता है, इस वास के अंदर रूहुल कुद्स की बाबत बड़ी तालीम। और आज रात मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं अपने घरों में इन 3 अबवाब का मुताला रूहुल कुद्स की रहनुमाई के अंदर कीजिए, ताकि आपका ज़हन और दिल रूहुल कुद्स के लिए खुल जाए। मसीह खुदावंद ने यूहन्ना के मुताबिक इंजील बयान 4वें बाब की 16वीं आयत में कहा, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, ताकि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। फिर यूहन्ना के मुताबिक इंजील बयान 16वां बाब 7वीं आयत, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद होगा, अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊं तो उससे तुम्हारे पास। मसीह ने कहा था जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, तो मैं ये हवाले दे रहा हूं कि मसीह उठाए जाने से पहले रूहुल कुद्स की बाबत बड़ी तालीम अपने शागिर्दों को दे चुका था। यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 16वां बाब 13वीं और 14वीं 2 आयत, लेकिन जब वो रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से न कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा। मतलब ये है कि अगर रूह अपनी तरफ से नहीं ना कहता, तो रूह से भरा हुआ ईमानदार भी अपने पास से नहीं कहता। वो कहता है जो रूह उसे बताता है, और रूह वो कहता है जो वो सुनता है और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। और फिर मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कहा, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल
कुछ से बपतिस्मा पाओगे। और इस तालीम के देने के बाद मसीह आसमान पर उठाया गया, लेकिन शागिर्दों के अंदर, रसूलों के अंदर, उस 120 की जमात के अंदर रूहुल कुद्स के लिए इतनी भूख और इतनी प्यास लग गई। और अगर आज रात आप रूहुल कुद्स के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, दिली तौर पर आप तैयार होकर आए हैं कि आज रात मुझ पर पाक रूह के नज़ूल की रात है, आज रात मेरे भर जाने की रात है, तो कोई वजह नहीं है कि आपको पाक रूह ना मिले या ना दिया जाए। वो भूखे प्यासे लोग 10 दिन तक रूहुल कुद्स के लिए ठहरे रहे। अंदाजा कर ले क्या भूख थी, क्या प्यास थी। हम आज किसी सियासी मकसद के लिए, किसी जाती गर्ज के लिए तो 10 दिन तक ठहर सकते हैं। रूहुल कुद्स के लिए हमें ना तो तालीम दी गई है, ना हमें बताया गया है, ना हम उसके मिजाज को समझते हैं, ना हम उसकी हजूरी के माहौल को समझते हैं। और हम सोचते हैं अगर जाता ही मिल गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आज रात जब आप कलाम सुन रहे हैं, मेरी दुआ यह है कि रूहुल कुद्स आपके अंदर रूहुल कुद्स के लिए भूख और प्यास को पैदा कर सके, और आप इस रियल एक्सपीरियंस को आज रात अपने अंदर ले सके। मैं गवाही के तौर पर आज रात आपको कहता हूं, रूहुल कुद्स के मिल जाने के बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है, आसमान खुल जाता है, माहौल बदल जाता है, इंसान पहले जैसे नहीं रहते हैं। खुदा की हजूरी हकीकत बन जाती है, खुदा की हजूरी रियलिटी बन जाती है, और इसके बगैर हम दुनिया के चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते। जब हम रसूलों के अमाल की किताब के दूसरे बाब का मुताला करते हैं तो वहां पर हमें एक सुपर नेचुरल इनकाउंटर विद गॉड, खुदा के साथ माफाकल फित्र तौर पर मुलाकात का जिक्र मिलता है। कलाम खुदा में यूं लिखा है कि वो सब एक जगह जमा थे, और सिर्फ जगह की बात नहीं, उनका मोटिव एक था, उनका मकसद एक था। वहां कोई ये दुआ नहीं कर रहा था मुझे शिफा दे दे, कोई ये नहीं कह रहा था मेरी शादी का बंदोबस्त कर दे, कोई ये नहीं कह रहा था मेरा कर्जा उतार दे, कोई ये नहीं कह रहा था मुझे कोरोना से बचा ले। ये तो आरसी चीजें हैं। वो सब ये कह रहे थे, वी वांट होली स्पिरिट, वी नीड द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। हम इस तजर्बे को लेना चाहते हैं जिसका तेरे बाप ने वादा किया है, तूने वादा किया है। हम उस तजर्बे को लेना चाहते हैं, और खुदा, बाइबल का खुदा दुआओं का जवाब देता है। क्या अजीब मंजर। आइए थोड़ी देर के लिए गौर करें। कोई वहां पर टार्च जलाकर उनकी आंखों में मारने वाला नहीं था, कोई वहां पर ये कहने वाला नहीं था हो गया हो गया। मैं हैरान होता हूं जब आज पेंटिकॉस्टल फेनोमेने में मैं इस्तिलाहात को सुनता हूं, टचिंग हो रही है, हो गया है, 2 लफ्ज मिल गए हैं। मैं नहीं समझता कि ये कहां की इस्तिलाहात हमने ली है। आओ आज रात फॉलो करें, तकलीद करें उस तजर्बे की जो पहली पेंटिकोस्ट के दिन हुआ, और आज रात दुआ करें। आई डोंट वांट टचिंग, मैं टचिंग नहीं चाहता, मैं भरना चाहता हूं, मैं फीलिंग चाहता हूं, मुझे अपने पाक रूह से भर दे। हालेलुया। सब एक जगह पर जमा थे। एक अजीब काम हुआ। Suddenly there came a sound from heaven. आवाज कहां से आई? सुनिए कहां से आवाज आई?
आज हम कीबोर्ड से आंधी की आवाजें निकालकर लोगों को तासुर देना चाहते हैं। पाक रूह आ गया है। पाक रूह का तजर्बा मिशंस नहीं देती, मिशनरीज नहीं देते, खादिम नहीं देते। पाक रूह तो बाप और बेटे के तख्त से सादिर होता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, जो मेरे बाप आता है वो मुझसे ज्यादा जोरावर है। ये जोरावर का काम है, कमजोर का काम नहीं है। और उसने कहा कि मैं उसकी जूती का तसरा खोलने के लायक नहीं हूं। वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। ये आसमानी तजर्बा है, ये आसमानी गिफ्ट है। कलाम कहता है, जोर की आंधी का सन्नाटा, देयर वाज नो विंड, कोई आंधी नहीं थी, लेकिन उसका शोर, उसका साउंड जोर की आंधी का मतवज्जो करने के लिए, अटेंशन करने के लिए। और आओ आज रात गौर करें कि खुदा ने ये आंधी का निशान दिया, तो इससे मुराद क्या है? ग्रीक जुबान में इसके लिए लफ्ज नुमा इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है दम, सांस, हवा। और हवा जब शिद्दत इख्तियार कर जाए तो विंड, आंधी बन जाती है। ये खुदा की हजूरी की अलामत थी। अगर आप रूहुल कुद्स की बाबत मुताला करते हैं तो आपको पता होगा कि रूहुल कुद्स के जो सिंबल्स हैं, इनमें आंधी, हवा, इसको रूहुल कुद्स का सिंबल ठहराया गया है। क्या अजीब आउटवर्किंग रूहुल कुद्स की आंधी, जो खुदा की हजूरी का निशान है। और वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और सिर्फ आंधियों तक बात नहीं रही। कलाम कहता है, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें क्या हुई? बोलना बात की बात है, देखना पहली बात है। और ये अजीब तजर्बा है। हम जुबानें बोल सकते हैं, लेकिन जुबान, देख, मैं इस जुबान की बात नहीं कर रहा जो कईयों की छोटी होती है, कईयों की बड़ी होती है। मैं बोली की बात कर रहा हूं, लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन पहले पेंटिकोस्ट के दिन शोले का आना इस बात की अलामत थी कि वो जो आग के शोला में कोई सीना पर उतरता था और कोई सीना का सीना दहल जाता था, पहाड़ धुएं से भर जाता था। यहोवा इस बाला खाना के अंदर आ गया है, कोई और चीज नहीं। यहोवा यहाँ पर मौजूद हुआ है और उसकी हजूरी का ज़हूर आग के शोले की तरह है। और इसका मतलब यह है, ये जुबानें सिखाई नहीं जाती, तालीम नहीं दी जाती कि ये बोलो और ये ना बोलो। ये तो आसमान से आती हैं और गिफ्ट के तौर पर मिलती हैं। और जब ईमानदार रूहुल कुद्स से भर जाते हैं, फिर आग किसी जुबानें दिखाई देती हैं। रूहुल कुद्स से भरा हुआ ईमानदार वो हालेलुया कहता है, शैतान को मिसाइल मालूम होता है, आग मालूम होती है। और ये उनके अंदर से निकलती है जो पाक रूह और खुदा की हजूरी की आग से भरे हुए ईमानदार हैं। खुदा का कलाम कहता है कि आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। और उनमें से कितनों पर? हर एक पर। वो आई सारे पाखरों ना पर सब, तो फिर सारे में ठहरना ही। और अगर आज रात हम सब रूहुल कुद्स से भरने के लिए आए हैं, तो ये रूह आप में से हर एक पर ठहर रहा है, ठहर जाएगा। अजीब तजर्बा आज रात आपकी जिंदगी के अंदर हो जाएगा। और एक अजीब बात
सब रूह कुद्स से भर गए। हालेलुया। क्या हुआ रूह कुद्स से? कोई टचिंग नहीं हुई, कोई डाउन पेमेंट नहीं मिली कि थोड़ा आज ले लो फिर अगले साल ले लो। वो सब रूह कुद्स से भर गए। और गैर जुबाने दूसरे दर्जे पर, पहले दर्जे पर रूह कुद्स से भरना है। हम रूह कुद्स को सिर्फ गैर जुबान नहीं समझते हैं। और कई ईमानदार सारी जिंदगी दो लफ्जों पर अड़े रहते हैं। कोई फीलिंग का, कोई फुलनेस का, कोई मामूली का जिंदगी के अंदर तजर्बा नहीं। जिंदगी में एक दफा छुए गए, उसी पर अड़ गए। लेकिन आज रात खुदा ने मुझे इसलिए यहाँ पर भेजा है ताकि मैं आपको ये बताऊं कि ये तजर्बा छुए जाने का नहीं बल्कि भरने का तजर्बा है, जिसका आउटपुट ये है, जिसका रिजल्ट ये है कि वो सब रूह कुद्स से भरकर गैर जुबाने जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, ये गैर जुबाने रूह कुद्स की हजूरी और उसके भर देने का निशान। ये गैर जुबाने ये चूंकि आसमानी है, गौर से सुने, आसमान से मिलती हैं और ये आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें हैं। इसका मतलब ये है कि ये खुदा की हजूरी इन जुबानों के अंदर पाई जाती है। अगर आपको जिंदगी में कभी लगे कि खुदा की हजूरी दूर होती चली जा रही है, जहां पर आप हैं वहां हजूरी नहीं है, वहां पर उकताहट है, बोर होना है, उकताहट है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, मायूसी है, तारीकी है, स्पीक अदर टंग्स, इनके वसीले वो जगह खुदा की हजूरी से भर जाएगी। अपने घरों में गैर जुबाने बोला कीजिए, अपने माहौल में गैर जुबाने बोला कीजिए। ये जुबान इंसान को खुदा से मिलती और उसको खुदा की हजूरी से भर देती है। खुदावंद यीशु मसीह इसी तजर्बे को रूह कुद्स का बपतिस्मा कहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों तक या थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा। बहुत से ईमानदार वो पानी का बपतिस्मा लेते हैं और फुल स्टॉप लग जाता है। आगे कोई तरक्की नहीं है, आगे कोई बढ़ना नहीं, कोई तालीम नहीं। ये मैं किसी मिशन की तालीम प्रीच करने नहीं जा रहा हूं, ना मैं किसी मिशन की अकायद आपको बता रहा हूं। ये आपके और मेरे खुदावंद की तालीम है कि तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। और यूहन्ना ने कहा, मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा। और ये वो वाक़ा है जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा दिया और वो कहता है आसमान से रूह को कबूतर की तरह उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया। रूह तो वही देगा ना जिस पर ठहरा हो। किसी को नाम दे दिया जाए कि ये भी रूह कुद्स की तरह है, इससे नहीं ठहरता। ठहरता उस पर है जिससे बाप खुश हो। कलाम कहता है उस पर ठहर गया और वो कहता है मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा, जिस पर तू रूह कुद्स को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्स का बपतिस्मा देने वाला है। ये बपतिस्मा लफ्ज यूनानी ज़बान के लफ्ज बैप्टिज़ो से निकला है, जिसका मतलब है गोता देना। गौर से सुनिए प्लीज। क्लासिकी ग्रीक में या क्लासिकल ग्रीक में इसका मतलब है, और ये लफ्ज जहाजों के गर्क हो जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
کوئی جہاز جو آدھا پانی میں ہو اور آدھا باہر ہو وہ غرق نہیں ہوتا. غرق وہ جہاز ہوتا ہے جو سمندر کے پنڈے کے اندر اتر جاتا ہے. اور یہ شہر میں بے پناہ ہجوم کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. روح القدس سے یا روح القدس میں بپتسمے سے مراد یہ ہے کہ انسان روح القدس کے ماحول میں، روح القدس میں غوطہ زن ہو جائے، غرق ہو جائے، پورا کا پورا شخصیت ساری کی ساری اس کے اندر ڈوب جائے. اور یہ تجربہ انسان کو خدا کی حضوری کی تازگی سے بھر دیتا ہے. اور ایک مشہور ایکسپوزیٹری ڈکشنری W.E. وائن کی گریک کی ڈکشنری وہ یہ کہتی ہے کہ لفظ بیپٹیزو، یہ بیپٹو جو ڈبونے کی جاریہ حالت ہے اس سے نکلا ہے. اور یونانیوں میں یا گریک کلچر کے اندر یہ کپڑے کو رنگنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کپڑے کو رنگ میں ڈبو دیا جاتا، ڈپ کیا جاتا. اور یہ صرف ڈپ کرنے کی بات نہیں ہے، جب تک کپڑے کے سوت پر رنگ چڑھ نہیں جاتا تھا، رنگ اس کپڑے کے ریشے ریشے کے اندر نہیں بس جاتا تھا، اس وقت تک وہ ڈوبا رہتا تھا. یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے جو آج رات خدا کا بیٹا دینے کے لیے اقبال ٹاؤن کے اندر اترا ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم روح کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہو جائیں اور ہماری شخصیت کے تمام گوشوں پر، تمام ڈائمنشنز پر روح القدس کا رنگ چڑھ جائے. ایک امریکن رائٹر کہتا ہے روح القدس کا بپتسمہ ایسے ہی ہے، ایک سپنج لیا جائے، فوم لیا جائے، اس کو پانی میں ڈبو دیا جائے. جب آپ اس کو نکالیں گے اس کے اندر سے پانی نکلے گا، دبائیں گے پھر بھی پانی نکلے گا، پیار سے گالوں پر تھپ تھپائیں گے پھر بھی پانی ہی نکلے گا. روح القدس سے بھرا ہوا ایماندار، اس کی مثال یہ ہے، اس پر ٹارچر کیا جائے، پرسیکیوشن دی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کے اندر سے الہی محبت کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے. روح القدس کا نزول اس کے اندر سے جاری رہتا ہے. خدا نے عہد عتیق میں جو وعدہ بنی اسرائیل سے کیا وہ یہ تھا. یوئیل کی کتاب 2 باب 28 آیت سے، میں ہر فرد بشر پر، کتنے لوگوں پر؟ ہر فرد بشر پر اپنی روح کو کیا کروں گا؟ اب ذرا میرے ساتھ رہے گا. روح کو کیا کروں گا؟ اور یہاں پر نازل کرنے کے لیے عبرانی زبان کا لفظ ہے شفقت. اس کا اشارہ موسلا دھار یا زور کی بارش کی طرف ہے، یا کسی مایا چیز کا اوپر سے انڈیلا جانا کہ انڈیلے جانے والے کو وہ اپنی گرفت میں لے لے. اور زبور کی کتاب میں لکھا ہے وہ اس تیل کی مانند ہے جو ہارون کی داڑھی پر ڈالا گیا اور اس کے پیراہن تک جا پہنچا. جو چیز انڈیلی جاتی ہے، نازل ہوتی ہے، وہ صرف سر تک نہیں رہتی، وہ پوری شخصیت کے اندر اتر جاتی ہے. اور یہ وہ وعدہ ہے جو خدا نے یوئیل نبی کی معرفت کیا تھا. نازل کرنے میں اور پھونکنے میں فرق ہے. بہت سے لوگ اس تجربے پر اڑ جاتے ہیں کہ ہمیں روح القدس کے وسیلے نئی پیدائش کا تجربہ مل گیا ہے اور یہ کافی ہے. یسوع مسیح نے یوحنا کے مطابق انجیل بیان کے 30 باب میں نیکودیمس سے کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے. بہت سے لوگ یہاں پانی سے مراد بپتسمہ لیتے ہیں، لیکن میں ڈس ایگری کرتا ہوں. یہاں پانی سے مراد کلام ہے. بپتسمہ نئی پیدائش کا غسل ہے، وہ نئی پیدائش نہیں ہے. نئی پیدائش ایماندار کو روح کے مسح کے نیچے کلام
की चोट के वसीले मिलती है। और ये तजर्बा निजात के लिए तो काफी है, लेकिन दूसरे लोगों को निजात तक लाने के लिए हमें एक और तजर्बे की जरूरत है। यूहन्ना के मुताबिक इंजील बयान 20वां बाब खोलिए। हमें यह भी कहा जाता है कि ये तजर्बा उस वक्त के लिए था। मैं उनको ये रेफर करता हूं, मुकद्दस पतरस से पूछो, वो कहता था ये तुम्हारी औलाद और तुम्हारे बाप के आने वाले लोगों से भी है। 20वां बाब 22 आयत पढ़ रहा हूं। ये मसीह का एक ज़हूर है जब वो मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और कलाम कहता है, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। इस दौर के मशहूर स्कॉलर पास्टर शकील साहब बैठे हुए हैं। सुनिए, क्या जब यीशु ने फूंका और कहा कि रूहुल कुद्स लो, उन्हें रूहुल कुद्स नहीं मिला था? चलो भोंकने की बात है तो लिखा है कि उसने उसके नथनों में जिंदगी का, तो वो क्या हुआ? भरने का ताल्लुक नहीं है, वहां तो जीती जान होने का ताल्लुक है। यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 20वां बाब 22वीं आयत ये बताती है कि ये लाइफ गिविंग एक्सपीरियंस है, नई जिंदगी मिल जाने का तजर्बा है। ये बहुत अच्छा है, हर एक ईमानदार के लिए जरूरी है। रूहुल कुद्स के बगैर हम नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते हैं, लेकिन यही तजर्बा काफी नहीं है। इसके बाद मसीह ने उनसे कहा था, जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में। इसके बाद मसीह ने कहा था कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। हमारी निजात के लिए नई पैदाइश काफी है, लेकिन जहन्नुम को खाली करके आसमान की बादशाही को भरने के लिए और आसमान की बादशाही की स्ट्रेंथ और पावर की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें एक और तजर्बे की जरूरत है, और वो है पावर गिविंग एक्सपीरियंस। जब तक कुव्वत का लिबास, आग बुझाने वाले, जब तक फायर फाइटर का लिबास नहीं पहनते, वो आग, मैंने कोई दाना शख्स नहीं देखा जो आग बुझाने जाए और क्रिकेट की किट पहनकर चला जाए। बेटा, वहां बॉलिंग की बात नहीं, आग से लड़ने की बात है। मैं उन ईमानदारों को वार्न करना चाहता हूं जो हल्के हाथों शैतान के साथ जंग लड़ रहे हैं, जिनके पास कुव्वत का लिबास नहीं है। इसीलिए हमारे घराने सोज और गम से भरे हुए हैं, हमारी खिदमत के अंदर जान नहीं रही है, हमारे पैगाम खाली और हल्के होकर रह गए हैं। आओ आज रात कहे, मुझे कुव्वत का लिबास दे ताकि पाकिस्तान हिला दिया जाए। हम पाकिस्तान हिलाने की क्या बात करें? हमें तो कोरोना ने नीचे से ऊपर किया हुआ है। मैंने हीलर्स को मास्क पहनकर कलाम सुनाते देखा है। मैंने बड़े बड़े रहनुमाओं को ग्लव्स पहने कलाम सुनाते देखा है। छुप गए जिन ग्राउंड्स के अंदर शिफा की मंडियां लगती थी और शिफा के पानी और तेल बिकते थे, कोरोना ने विभान कर दी है। आज वहां पर जिंदगी नहीं, कुछ नहीं है। ये तजारती मंडियां थी, बंद हो गई, लेकिन रूह की मंडी, रूह का दरिया आज भी जारी है, और वो कोरोना पर खुदा से भरकर रुलमा बख्श देता है। एवं बजे फिर जो सैनिटाइजर आते डिटोल के पीछे, आओ कुव्वत का लिबास ले लो। इसमें ग्लव्स भी है, हेलमेट भी है, हर एक चीज तुझे मिल जाएगी। और अगर आज रात तुझे कुव्वत के लिबास का तजर्बा मिल गया, शैतान आगे आगे तो तू पीछे पीछे, कोरोना आगे आगे और तू
फिर डरने की जरूरत नहीं होगी। मैं आज रात इस बात पर जोर देना चाहता हूं, जब तक आदम बाला से कुव्वत का लिबास न मिले, अगर पुराने अहद का एक नबी जिस पर दोहरी अनॉइंटिंग थी, उसकी हड्डियों से लगकर मुर्दा जिंदा हो सकता था, उस पर तो नबी की अनॉइंटिंग थी। हमारे पास तो उसका नशा है जो नबी से और नबियों से बड़ा है। क्यों हमारी हड्डियों के अंदर आज जिंदगी नहीं रही, मौत आ गई है? क्योंकि हमने रूहुल कुद्स से दोस्ती छोड़ दी है। हम दुनियादार हो गए, हम लिबरल हो गए, हम बड़े मॉडर्न हो गए हैं। हमने कुव्वत का लिबास उतार कर कोई और लिबास पहन लिया है। लेकिन वक्त गनीमत है, हालात खतरे की तरफ जा रहे हैं। अगर गालिब आना चाहते हो, मसीह की बादशाही के लिए रूहों को जीतना चाहते हो, तो कुव्वत का लिबास, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और ये फूंके जाने की बात नहीं। जो कुछ फूंका जाता है वो इनहेल किया जाता है। जो नासिल होता है वो अपने अंदर छुपा लेता है। फर्क नहीं लगता, फर्क है। फूंका गया, जिंदगी मिल गई, उंडेला गया, ताकत मिल गई, कुव्वत मिल गई। और वो ताकत मिली जिसने मौलूमा दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज हमारे पास नजरिया बहुत है, हम बड़ी बड़ी रूहानी शुरलियां छोड़ते रहते हैं। फेसबुक को देख लो, कोई कहता है कसरत होगी दुआ करने वालों की, और यहां तक हम नादान हो गए हैं कि कोई शख्स अलीशा का असा जो जहाजी के पास था, उसको सेल्फी स्टैंड के साथ तशबीह दे रहा था। खुदा कलाम सुनाने वालों की अक्लों को रोशन करे और हम मॉडर्न दौर की चीजों से सिंबलाइज करने की बजाय उनकी रियलिटी को समझने की कोशिश करें। ये कुव्वत का लिबास तेरी शौकत है। आगे में ना ये फंक्शन है, कोई सोना जा लिबास होना चाहिए, कोई सोने के कपड़े। कई मेरे अगर गर्मियां से अलावे पाके टोर जा रहे सोने के आ गए। लेकिन ये कुव्वत का लिबास, ये दुनिया के तमाम लिबासों से ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा जीनत वाला है, ज्यादा कुदरत वाला है, ज्यादा हिम्मत देने वाला है। और उन रसूलों ने मौलूमा दुनिया को हिलाकर रख दिया। फिकी और फरीसी सर पकड़कर बैठ गए, इनका रास्ता कौन रोके? इन्होंने कुव्वत का लिबास पहना है। हाँ, ये चलते हैं, पहले कुलसम दो टुकड़े हो जाता है। ये चलते हैं, यर्दन अपना रुख मोड़ लेता है। यहाँ पर तो जन्म के अंधे चौकड़ियां भरते हैं, जन्म के लंबे चौकड़ियां भरते और अंधे देखते हैं, और खुदा की बादशाही की डेमोन्स्ट्रेशन होती है। सामरिया शहर हिल गया उस वक्त जब रूह से भरा हुआ एक ईमानदार फिलिप्पुस वहां पर पहुंचा था। हम मार इसलिए खा रहे हैं, कमजोरी यह है कि कुव्वत का लिबास कभी मिला था लेकिन आज हमारे पास नहीं है। हम खाली हो गए। आग का लिबास हमें दरकार है, इसके बगैर खिदमत नहीं हो सकती है। इस तजर्बे के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी दुआओं के अंदर जिंदगी आ जाए, आपकी गुफ्तगू के अंदर जिंदगी आ जाए, आप पाक रूह से भर जाएं, तो फिर आज रात हमें यह कहना होगा कि खुदा मुझे वो तजर्बा दे जो पेंटिकोस्ट के दिन मिला था। आज रात मेरी ईद पेंटिकोस्ट हो जाए, मुझे पाक
रूह से भर दे। और मत सुनिए उन लोगों की बातें जो गैर जुबानी बोलने से मना करते और वो ये कहते हैं कि ये उस वक्त के लिए थी। अरे ये खुदा देता है, वो किसी वक्त में भी दे देवे, किसी को क्या एतराज हो सकता है। और मैं गुजारिश करूंगा पास्टर शकील से, मेरे पास वक्त नहीं, वो जरूर अपने मैसेज में टंग्स एज ए साइन और एज ए गिफ्ट इसको जरूर बयान करें। पौलुस रसूल जुबानें बोलने से मना नहीं करता, वो कहता है मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं, और जो गैर जुबानें बोलता है वो अपनी तरक्की करता है। और जिसकी अपनी तरक्की ना हो वो किसी की तरक्की क्या करेगा। आओ तरक्की की तरफ आगे बढ़े, तरक्की की तरफ गामजन, आओ तरक्की के लिए कदम आगे बढ़ाएं। और आज रात रूहुल कुद्स के तजर्बे के लिए भूखे और प्यासे हो जाएं। रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का तजर्बा हमें मसीह के बदन में शामिल करता है। क्या करता है? कुरिन्थियों के नाम खत के अंदर यह लिखा है, पहले कुरिन्थियों 12वां बाब 13वीं आयत, क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हो खा यूनानी, खा गुलाम खा आजाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए क्या लिया है? जोर से बोलिए, कितने बदन होने के लिए? आज हम एक बदन होने की बातें करते हैं, बाकी शायद छोटी छोटी कुपियों में लेते हैं। मुझे छूत ना लग जाए, जरासीम ट्रांसफर ना हो जाए। अरे ये प्याला तो जरासीमों को मार देता है, इससे क्या जरासीम तेरे अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। और आज हमने मसीह के नाम से और उसके बदन से पहचाने जाने की बजाय जातों को तरजीह दी है। चर्च लीडर्स अपने नाम के आगे जातें लिखते हैं। खुदा करे इनको निजात मिल जाए। जब हम उस जात में थे, गुनाहगार थे, जब जाते इलाही में शामिल हो गए, निजात पा गए और छूट गए, और अब हम शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और बरगुज़ीदा नस्ल है, और हमारी पहचान यीशु है। कलाम ये बताता है पाप रूह नासिल हुआ, ऐसा इत्तेहाद आ गया, ऐसी वननेस आ गई। वो गैर जुबानी बोल रहे थे 120 की जमात, सुनने वाले तकरीबन 16-17 मुख्तलिफ खित्तों के लोग, जिनकी शायद जुबानें भी फर्क थी, लेकिन ये इत्तेहाद जारी हुआ कि बोलने वाले बोलते जा रहे हैं, सुनने वालों को एक ही समझ आ रही है। कितनी समझ आ रही है? एक ही। और वो उनके मुंह से खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुन रहे थे। मुझे याद है यहाँ पर एक सेमिनार हुआ था जिसमें इन्फोर्स किया गया था, गैर जुबानों की समझ उनको नहीं आई थी। कभी कलाम ध्यान से पढ़ लिया करो, लिखा है वो समझते थे कि वो खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुन रहे हैं, और ये खुदा कर देने की कुदरत रखता है। बहुत सी बातें आज रात इसकी इबादत की जा सकती हैं, लेकिन मैं इसको वाइंड अप करने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं आइए उस बाला खाना पर चले, कहने दें आइए उस बाला खाना पर चले जहां पर 120 की जमात रूहुल कुद्स के लिए ठहरी हुई थी। और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है। वो सारा घर रूहुल कुद्स से भर गया, वो शख्स रूहुल कुद्स से भर गए, और अब एक ही माहौल वहां पर था। वो सब गैर जुबानें बोल रहे थे, रब शंदा रबा रबा इंदोर या रबा रबा। वो बाला खाना गैर जुबानों से गूंज रहा था। ओ रशंदे रे अगर आज रात आप रूहुल कुद्स के लिए भूखे और प्यासे हैं, मेरे साथ खड़े हो जाइए। वो रोह जो उस बाला खाना के अंदर उतरा था, वो आज रात यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है। ओ रबा रबा सिंदोरो, अपने हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर दीजिए। अगर आप रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं,
सब आंखें बंद हो जाए। आए दुआ मांगना शुरू कीजिए। खुदा का खालिम आपके लिए दुआ करेगा। आप रूहुल कुद्स से भर जाएंगे। आप सुन रहे थे, आप तजुर्बे का वक्त है, आप एक्सपीरियंस करने का वक्त है। मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। आए मुंह खोले, आप आवाज बुलंद मांगे, पुकार में तुझे जवाब मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। उतरा है यहाँ, खुदा का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। दुआ करते रहिए, दुआ करते रहिए। खुदा का सच्चा खुदा है यहाँ। हाथ उठाइए और हाथ समाने बोलिए, यीशु के नाम में। सब गैर ज़बानों में जो बोल सकते हैं दुआ करना शुरू कर दीजिए। जो नहीं बोल सकते यीशु के नाम में बादलों से भर जाइए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यहाँ पर मौजूद है जिसने वादा किया था मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा। ओ इंदरा बाबा सारे खाने लगे। ओ बाबा ला बाबा यस यस यस। ओ या बाबा इंदरा बाबा
तेरी कुदरत इन बदलों के अंदर Yeah.
आइए उसको ले अपने अंदर, खाली हो जाए, ले ले उसके पाप रूह को। ओ इंतजार ना करें, कोई आप पर हाथ रखेगा, यीशु यहाँ पर मौजूद है, वो आपको छू रहा है, वो पाप से आपको भर रहा है। और दुआ मांगना शुरू कर दे। रूहुल कुद्स जुबाने दे रहा है, रूहुल कुद्स आंसू दे रहा है, नया कर रहा है, नई जिंदगी आ रही है। सुनिए, खुदा आपकी जिंदगी में शिफा के मुख्तलिफ मौजज़ात कर रहा है। मैं उनको देख रहा हूं। रिसीव कीजिए, ले लीजिए अपने अंदर, लेकिन रूहुल कुद्स के लिए भूखे हो, रूहुल कुद्स के लिए पुकार उठिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा 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 इंदा रबा रबा तको रबा रबा शंदा रबा रबा इना रबा 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 या रबा 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 इगो रबा रबा। आए आए भर जाइए रूह से, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। खुदा आपको भरना चाहता है। जो आप सुन रहे थे कि अगर पाकिस्तान को जीतना है तो इस मसा की आपको जरूरत है, इस बैप्टिज्म की आपको जरूरत है, इस बपतिस्मा की आपको जरूरत है। मौसर गवाही के लिए, मौसर गवाही के लिए रूहुल कुद्स की आपको जरूरत है। आए आए गिड़गिड़ाए, आए आंसू बहाए, खुदा मुझ पर रहम कर।